Hello, my dear students. Welcome back to your mathematics class with your Ashu ma'am. Dear students, today we are going to start Unit 11 Algebra of your NCERT book. Now, this is something new which you are going to study from now onwards. So, earlier, what we have learned, let me explain you that also. And what is algebra, let me explain you that also. Dear students, algebra is nothing, it is just a mystery. एक झोल माल है ये हमारे बीच में. अब ये झोल माल किन के बीच में है? सी दिस. वॉट इज द टर्म एल्जेब्रा? सो लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू दिस flow chart that what do you mean by algebra. Dear students, algebra, it is a branch of mathematics. Algebra is a branch of mathematics which deals with variables, constants and symbols. Now, what does it mean? Till now, we have learnt, we have discussed, we have studied arithmetic. In this arithmetic, you have learnt it is a branch of mathematics in which we studied numbers. जैसे हमने नंबर्स के बीच में सीखा कि नंबर्स की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हाउ टू ऐड टू नंबर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू डिवाइड. दैट when we deal with the numbers, that is known as arithmetic. Then the branch of mathematics in which we study shapes, different shapes, rectangle, triangle, square, parallelogram, etc. Then that branch of mathematics is known as geometry. Now the third branch of mathematics is algebra, which we are starting now. Now, once again, let us see what do you mean by algebra. Algebra is a branch of mathematics which deals with the variables, constants and symbols. Variables, the other name to variables can be used as letters. हम लेटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ वेरिएबल्स में कौन आ जाते हैं? ऑल अल्फ़ाबेट्स आर टर्म्ड एज वेरिएबल्स. जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं, ए बी सी डी एंड सो ऑन अप टू Z. All these comes into the category of variables. From here, I'll explain you the meaning of variables also. Then constants. Constant means numeric values, means numerals. Numerals में means numbers like 1, 2, 3, 4 and so on. Then symbols. Symbols means mathematical operators. तो mathematical operators कौन से हैं? Like plus, minus, multiply, divide and many more you will learn in your higher classes. So what do you mean by algebra? Algebra is the branch of mathematics which deals with variables. Number 1 variables, then number 2 constants and number 3 symbols, or we can say letters, numerals and operators. So you must note down this flow chart also in your notebook before starting the chapter. And now let me explain you what do you mean by variables and constants. So dear students, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what do you mean by variables. वेरिएबल के मैं दो टुकड़े कर देती हूँ, एक वेरी और दूसरा एबल. Through this you can easily understand what do you mean by variables. So one is vary and other is able. अब इसे अगर मैं और बताऊँ आपको तो वेरी का मतलब होता है चेंज एंड एबल मीन्स एबिलिटी. तो जिसमें चेंज होने की एबिलिटी होती है दोज आर नोन एज वेरिएबल्स. और इसमें एग्जांपल्स कौन आ जाते हैं? ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स. हाउ? मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊंगी. डियर स्टूडेंट्स, इफ़ आई आस्क यू, इफ़ यू विल गो टू अ शॉपकीपर एंड यू विल आस्क द शॉपकीपर टू गिव यू एक्स आइसक्रीम्स. अगर आप शॉपकीपर को बोलते हैं गिव मी एक्स आइसक्रीम्स, क्या उस शॉपकीपर को समझ में आएगा कि एक्स आइसक्रीम्स मतलब आपको कितनी आइसक्रीम चाहिए? आपको 1 आइसक्रीम चाहिए, आपको 2 चाहिए कि 3? नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो सकती है. शॉपकीपर क्या पता आपको 1 आइसक्रीम दे दे, क्या पता वो आपको 2 आइसक्रीम दे दें. मीन्स एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बिकॉज इट कैन चेंज. तो जो चेंज हो सकता है
दोज आर नोन एज, जिनमें चेंज होने की एबिलिटी होती है उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स, राइट। तो वेरिएबल्स, like as I have given you this example, x ice cream means you don't know how many ice creams you are asking to the shopkeeper. तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक इफ़ आई आस्क यू गिव मी m बर्गर्स, मुझे m बर्गर दे दो आप मुझे, तो विल यू एबल टू गिव मी, क्या आपको पता चलेगा कि मैम कितने बर्गर मांग रहे हैं आपसे, 2 बर्गर या 3 बर्गर या 4? नो, बिकॉज इट्स वैल्यू कैन चेंज। एम की वैल्यू 1 बर्गर भी हो सकता है, इट कैन बी 2 बर्गर 3, बिकॉज एम इज़ अ वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है उसकी वैल्यू। हो सकता है एक बच्चे को लगे कि मैम 1 बर्गर मांग रही हैं, हो सकता है 2 एंड सो ऑन। नाउ कांस्टेंट जो होते हैं वो बिल्कुल इसका अलग है, तो इसे हम वेरिएबल्स को क्या बोल देते हैं, हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो चेंज हो सकती है, और जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स, राइट। अब आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, विच आर नॉट फिक्स्ड, विच आर नॉट फिक्स्ड, तो कौन थे, वेरिएबल्स थे। विच आर फिक्स्ड, कॉन्स्टेंट्स which are fixed are known as, which cannot change, क्या बोल सकते हैं, cannot change और do not change। यहाँ change word था, यहाँ do not change है, और cannot change, वो होते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब इनमें कौन आ जाते हैं, सभी एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे नंबर्स 1 2 3 4 लाइक दिस। अब यहीं से एग्जांपल उठाते हैं। यहाँ पर हमने एक्स आइसक्रीम्स मांगी थी शॉपकीपर से, तो शॉपकीपर कुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी आइसक्रीम्स यू हैव आस्क्ड टू हिम, बट नाउ इफ़ आई आस्क द शॉपकीपर टू गिव मी 2 आइसक्रीम्स, इफ़ आई आस्क द शॉपकीपर टू गिव मी 2 आइसक्रीम्स, तो मुझे कितनी देगा वो, यस टेल मी कितनी देगा, एग्जैक्टली ही विल गिव मी एग्जैक्टली 2 आइसक्रीम्स। इफ़ आई आस्क द शॉपकीपर टू गिव मी 10 बर्गर्स, तो वो मुझे कितने बर्गर देगा, एब्सोल्युटली मुझे 10 ही देगा, क्योंकि 2 की वैल्यू भी फिक्स्ड है, 10 की वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है दे आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स, और जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है उनके लिए फिर फिक्स के लिए हम फिक्स्ड चीज़ों को ही यूज़ करेंगे, मीन्स न्यूमरल्स को, मीन्स नंबर्स को। लाइक इफ़ यू विल गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, यू विल आस्क फॉर 2 आइसक्रीम, दे विल गिव यू 2 आइसक्रीम्स ओनली। बट इफ़ यू विल आस्क एक्स आइसक्रीम, तो हमारे इंडिया में भी किसी को समझ नहीं आएगा कि एक्स मतलब ये बच्चा कितनी आइसक्रीम मान रहा है। तो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है इज़ नॉट फिक्स्ड, एक्स की वैल्यू 1 आइसक्रीम 2 आइसक्रीम कुछ भी हो सकता है, बिकॉज it is not fixed, so it is variable। vary plus able, vary means change, able means ability, right। and constants which are fixed चीज़ों के लिए हम न्यूमरल्स को यूज़ करते हैं, right। so must note down this page also in your notebook। now let us start with exercise 11.1। So dear students, here is question number 1 of 11.1 exercise. Find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write the rule. हमें variable use करना है, means alphabets use करने हैं, और number मैचस्टिक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नंबर, और वेरिएबल कोई भी साथ में जोड़ देंगे। लाइक अ पैटर्न ऑफ letter T. This thing I'll show you by the activity by using the matchsticks only. So dear students, these are the parts. A pattern of letter T. इसके लिए हमें रूल देना है कि क्या रूल बन सकता है यूजिंग मैचस्टिक्स। तो हम देखते हैं, हियर आर सम मैचस्टिक्स, हम देखते हैं कि कितनी मैचस्टिक्स को यूज़ करके T बनता है। तो दिस इज़ 1 मैचस्टिक एंड दिस इज़ 2। तो कितनी मैचस्टिक का हमने इस्तेमाल किया, वी हैव यूज 2 मैचस्टिक्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। उन्होंने बोला है कि नंबर को यूज़ करो मैचस्टिक्स के लिए, और वेरिएबल को भी यूज़ करना है
रूल बनाने के लिए। तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो वेरिएबल 2n ले लेते हैं, n वेरिएबल ले लिया हमने। a भी ले सकते थे, 2a b c d कुछ भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। वेरिएबल यू कैन यूज़ एनी वेरिएबल। सो दिस इज़ t। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमने बना दिया t बाय यूजिंग 2 मैट्रिक्स। नाउ लेट अस सी फॉर z। z के लिए हम देखते हैं, दिस इज़ 1 मैट्रिक, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। कितनी मैट्रिक्स का यूज़ किया हमने z बनाने के लिए, वी हैव यूज्ड 3, तो हम लिखेंगे 3 और कोई भी वेरिएबल लिख देते हैं n। सो 3n इज़ द रूल फॉर मेकिंग z अल्फ़ाबेट। तो इसे भी मैं यहाँ लगा देती हूँ सो दैट आपको ये पता रहे, राइट। नाउ u, अ पैटर्न ऑफ लेटर u। u बना के देखते हैं हमारे लिए क्या सूटेबल रहेगा। 1 मैट्रिक, देन दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। कितनी मैट्रिक्स का यूज़ किया हमने, 3, तो हम लिखेंगे 3n। अगेन वेरिएबल हम सब में n यूज़ कर रहे हैं। नाउ लेट अस मेक v देखते हैं हम, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, 2 से ही काम बन गया, तो वी विल राइट 2n, राइट। नाउ लेट अस मेक e बनाते हैं हम। e के लिए देखते हैं 1, दिस इज़ 2, this is 3 and this is 4, means 4n, 1 2 3 and 4। s के लिए ट्राई करते हैं, यहाँ पर हम 1 2 3 4 and 5। you can see 5 matrices are needed for s, तो the rule for s is 5n। now a pattern of letter a के लिए हम देख लेते हैं 1, this is 1 2 and ये 3 से बन जाएगा हमारा ये 3। तो इसके लिए रूल क्या लिखेंगे हम, 3n। so I hope it is clear to you। So this is what they are asking you to do by using matrices, and matrices are represented by the constants, means the numbers, and to give the rule using variable। तो हमने साथ में कोई वेरिएबल लगा दिया, यहाँ पर a b c d x y z कुछ भी ले सकते थे आप। So this is your question number 1। Dear students, do this activity by pasting the matrix in your practical notebook also। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल नोटबुक में भी करना है बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। ये चीज़ें आप राइट हैंड साइड पर लिखेंगे और मैथ स्टिक को पेस्ट करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पर। सो दिस विल बी योर एक्टिविटी फॉर अलजेब्रा ऑल्सो। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। Now dear students, let us read question number 2. We already know the rule for the pattern of letters LCF। तो हमें अब रूल हम बना सकते हैं एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1। हम किसके लिए बना सकते हैं, एल सी और एफ के लिए भी बना सकते हैं रूल। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। तो वो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऐसे लेटर हैं जो सेम रूल देते हैं जो एल के लिए बनेगा। तो व्हाट विच आर दीज, तो वो कौन से हैं जो एल के रूल के साथ मैच करते हैं। तो हम एल बना के देख लेते हैं। लेट अस मेक अ एल, 1 लाइन एंड 2 मैट्रिक्स। तो एल के लिए रूल क्या बनेगा, 2n। तो कौन कौन से लेटर हैं जो सेम रूल फॉलो करने हैं, टी एंड वी। सो दिस इज़ देयर क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से लेटर्स हैं जो एल वाला रूल फॉलो करते हैं। तो एल के लिए क्या रूल आया हमारे पास, 2n। तो किसके सिमिलर है, दैट इज़ सिमिलर टू टी में भी 2 मैट्रिक्स हैं एंड फॉर वी ऑल्सो, वी में भी 2 मैट्रिक्स हैं। देन व्हाट दे आस्क्ड अस, व्हाई डज दिस हैपन। तो हमारा रीज़न क्या रहेगा, बिकॉज इन टी एंड वी हैव यूज्ड 2 मैट्रिक्स as we are using to make L. So this will be our answer, and let me show you how to write. So we will write T and V is equal to 2n हमने दिखा भी रखा है T और V में, same as L is equal to 2n।
और ये रिप्रेजेंट कर दिया. द नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ दैम इज 2. बिकॉज उन्होंने पूछा है कि वाई इज इट सो, कि ये क्यों सेम रूल बना रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स इनमें सेम यूज हो रही हैं. सो दिस विल बी आवर आंसर. So dear students, I hope the question is clear to you. Do these questions in your practical notebook also, as well as in your fair notebook also. In practical notebook, you must paste these matchsticks also to make these alphabets and write down the answers on the right hand side, the ruled page. So that's all for now. Thank you, my dear students. I hope the questions are clear to you. And if you like my videos, comment on the video, like the video, and subscribe my channel. Thank you.